Inflorescence, what inflorescence? The arrangement of flower on a flower axis. Flower axis are two types. Flower axis, if they are showing a unlimited growth, if they are showing a limited growth. If they are showing the unlimited growth, such kind of fluorescence called racemose. Example is mustard. यहाँ पर देखिए आप, this is the mother axis where the continuous growing, the never stop, the growth is never stop the mother axis here. So all flowers are alternately left, right side they are found it, right? Such example is mustard. The second type of mother axis found in a dianthus plants where the particular mother axis growth terminate when the flowers is terminate with a flower. एक terminate flower के टर्मिनल फ्लावर की वजह से यहां पर मदर एक्सिस की ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर ग्रोथ लाइक लुक दिस. So limited growth showing the mother axis, such kind of the inflorescence called cymos, and another that unlimited growth is we are showing the mother axis that called racemose. Example mustard, and this is the example of dianthus. Flower. What is flower? The modification of shoot. What for they are modified here? For sexual reproduction. Each flowers is made up of different four parts. Four parts are there, also known as rolls. Right? The first rolls is called calyx, is made up of sepals. They are green. They provide protection to the bud or flower. They also provide the photosynthesis skill to the plant. Right? Second, corolla. They are made up of the petals. Petals are colorful. They are responsible to attract the insects for the pollination. Right? And such kind of the particular part also help in a pollination like. Androecium. Androecium, the male part is made up of the stamens, and stamens have this kind of the part. Anther, which is responsible for the formation of pollen grains, and the filamentous is the suspension between the flower. Right. Second, gynoecium. This is the female part of the flower, is made up of different varieties, different components or unit that called carpel or also known as pistil. The carpel or pistil have a different three portions. This is the swollen portion, lower portion, that is ovary, made up of ovule. Ovule is a site where the different female glands we can see there. Right. Stigma is the topical part where pollination occurs, and this is the suspension between the stigma and ovary that called style. Before going to the other point, first perianth. एक टर्म लीजिए सबसे पहले perianth. Perianth. Right. Perianth is what? Calyx or corollas are not distinct. Calyx and corolla are not distinct. As well as we know, calyx are green color, made up of sepal, and corolla having colorful structures. They are made up of petals, colorful. This is the distinctions between the calyx and corolla. But some of the flowers, they does not have any kind of distinctions between the calyx and corolla. Such terms should be there. Perianthus. Example, इस तरह की perianthus का examples हो गया greens, and greens are the examples of lily flowers. Lily flowers. This is called lily flowers, right? तो lily flowers का जो family होता है, the cluster, the group of such kind of plants, also known as Liliaceae. याद रखना, Liliaceae. और Liliaceae के अंदर दूसरा एग्जाम्पल, आपके किचन एग्जाम्पल की बात करें तो अनियन, गार्लिक. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ Liliaceae. ये Liliaceae का एग्जाम्पल है. ठीक है. तो वहां पर कैलिक्स और कोरोला को हम अलग अलग नहीं देख सकते. दे आर लुक लाइक अ सेम स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर. एक फ्लावर का डिस्क्रिप्शन जब आप शो करते हैं, अब हम बात करेंगे केवल फ्लावर की, फ्लावर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की. तो इस तरह से कैसे बात करें? सबसे पहले टर्म बात करें यूनिसेक्सुअल, उसके बाद बात करें अपन बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल, अ पर्टिकुलर फ्लावर if they have only androecium, if they have only anther stamens, यदि उनमें स्टैमेन्स हैं तो उसे मेल फ्लावर बोलेंगे. ऐसी कंडीशन में इसका टेक्निकल टर्म हो जाएगा स्टैमिनेट. Such kind of flower, if they have only stamens, that condition will be only
द टर्म शुड बी हियर स्टैमिनेट फ्लावर्स। और यदि उसमें फीमेल पार्ट है, इफ दे पोजेस ओनली कार्पल्स पोर्शन, कार्पल पोर्शन और पिस्टल पोर्शन ऑफ द फ्लावर, दैट कंडीशन शुड बी दी है, टर्म यहां पर यूज की जाएगी पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। बाइसेक्सुअल, वन फ्लावर पोजेस बोथ ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स इन अ सेम फ्लावर, एक फ्लावर में दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एक साथ होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं। यहां पर एग्जांपल हो गया रोज, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ पापाया। पापाया प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। सेकंड टर्म, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर, complete and incomplete flower. If any flower possesses the 4 different roles togetherly in a one flower, यदि चारों के चारों रोल्स एक फ्लावर में मौजूद है, दैट्स काइंड कंडीशन ऑफ कंप्लीट फ्लावर, उसे कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, राइट। तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, दैट कैलिक्स मौजूद है, उसमें कोरोला मौजूद है, उसमें एंड्रोशियम उसमें मौजूद है, और गायनीशियम उसमें मौजूद है। तो चारों चारों रोल्स एक साथ है। इनकम्प्लीट फ्लावर में कोई सा भी एक एब्सेंट हो सकता है, एनी एब्सेंट द कंपोनेंट ऑफ द फ्लावर, और रोल जो कोई सा भी हो वहां पर एब्सेंट होगा, रोल्स एब्सेंट होगा। एग्जांपल ले सकते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। Unisexual flower is the incomplete like of flower because they possess only male or female part. Out of 4 part, they possess only male or female part. Right? Calyx absent है, corolla ही है, या corolla absent है, calyx ही है। इस कंडीशन में भी उसको incomplete flower ही बोलेंगे। Third number is related to symmetry of the flower. Symmetry of the flower. Symmetry are different 3 types. Number 1, radial symmetry. Radial symmetry. हमने चैप्टर नंबर 4 में रेडियल सिमेट्री पढ़ी थी कि किसी भी एक प्लांट पोर्शन या किसी भी एनिमल पोर्शन को आप एक से ज्यादा सेंटर कट करते हुए इक्वल पार्ट्स में हर बार डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द फॉर्म इज रेडियल सिमेट्री। बट रेडियल सिमेट्री नॉन इज इन एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर इस रेडियल सिमेट्री को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को सिंबल के तौर पर कैसे शो किया जाता है, इस तरह प्लस की फॉर्म। हम जब इसको जिस तरह से केमिस्ट्री के अंदर डिनोट किया जा रहा है उसी तरह से हम यहां पर इसको प्लस की फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें यहां पर सेकंड सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर क्या है, सेंटर एक्सिस पे एक ही कटिंग के थ्रू 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड किया जा सकता है, उसके बाद कभी भी उस एनिमल्स को डिवाइड नहीं किया सकता। प्लांट्स में ऐसा होता है तो उस बायलैटरल सिमेट्री को स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है, उसको कहते हैं जायगोमॉर्फिक। जायगोमॉर्फिक, दैट इज कॉल्ड जायगोमॉर्फिक। तो जायगोमॉर्फिक को सिंबल के तौर पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, जायगोमॉर्फिक को हम इस तरह से परसेंटेज सिंबल की फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है, तो इसको प्लस की फॉर्म में, इसको परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप ऊपर भी देखिए, सिंबल्स के तौर पे देखा जाए तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को मेल और फीमेल इस तरह से शो किया जाएगा। यदि वो बायसेक्सुअल है तो दोनों एक साथ मौजूद है, बायसेक्सुअल कंडीशन को ऐसे शो किया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर को इंडिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया मस्टार्ड, और जायगोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया पी फ्लावर, पाइसम सटायम फ्लावर, पी फ्लावर उसका एग्जांपल है, ठीक है। और थर्ड हो गया, किसी भी प्लेन के थ्रू कभी भी उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया सकता। सच काइंड ऑफ फ्लावर दैट नेवर डिवाइड्स इक्वल 2 हाल्स बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन दे नेवर डिवाइडेड इन इक्वल 2 पार्ट्स,
equal two halves. They never divided. That's why this kind of the particular symmetry called asymmetrical. Asymmetrical. Asymmetrical flowers. और asymmetrical flowers का सबसे बेस्ट एग्जांपल है canabina. Canab, C-A-N-N-A. This is not a common plant, common flower. This is very rare plant in India. That's it. Right. उसी तरह से फोर्थ नंबर देखें, node. This is the node where from the flower originated. Before origination of the flower, this is the particular bud portion that protect by a particular leaf portion. एक लीफ के थ्रू यहां प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिसको लीफ वाली जगह पर ब्रैक्ट बोला जा, लीफ वाली जगह पर जिसको हम स्टेपुले बोल रहे थे, फ्लावर वाली जगह पर उसको बोला जाएगा एक स्पेसिफिक नेम से, लाइक दिस इज द, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्रैक्ट. ब्रैक्ट, B-R-A-C-T. ब्रैक्ट को हम शो करते हैं BR से. ब्रैक्ट. किसी फ्लावर में ब्रैक्ट हो भी सकती है, किसी फ्लावर में ब्लैक नहीं हो सकती. यदि ये प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम BR से इंडिकेट करते हैं. यदि एब्सेंट है तो उस फ्लावर को वी विल इंडेक्ट EBR. मीन्स शॉर्ट टर्म ब्रैक्टेड फ्लावर. And second one, E-bractate flower. E-bractate means flower that does not possess any kind of bract. Right? जिस जगह से किसी भी फ्लावर का ओरिजिनेशन हो रहा है, उस बड फॉर्म में लीव्स वहां पर प्रेजेंट करती है और उसके बाद में भी करती है. दैट पर्टिकुलर लीफ स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट. इफ देयर एनी फ्लावर पोजेस ब्रैक्ट, दैट कॉल्ड ब्रैक्टेड फ्लावर्स. और नहीं होता है तो उसे E-bractates कहते हैं. ठीक है, दैट इज द पर्टिकुलर. अब देखें अपन नेक्स्ट कंडीशन. यहां तक क्लियर है बच्चा? इज दैट क्लियर थिंग? नेक्स्ट 5 नंबर. हाँ बोलिए, हाँ बोलिए. देखिए एक्चुअली क्या है, कल अपन ने बात करी थी ना कि हर एक लीफ के ऊपर, जैसे हमने बात करी थी कल, ये एक शूट है, उस पर लीफ होने से पहले ये नोड है. इज दैट क्लियर? नोड है. इस नोड से एक एरियल पोर्शन खड़ा हो रहा है जिसको हम पेटियोल कहते हैं, और ये पेटियोल पर क्या पाई जा रही है? लीव्स पाई जा रही है. राइट. तो इस बड की प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पर क्या बताई थी? स्टेपुले. राइट. बट यदि ये डिसाइड है कि यहां पर फ्लावर लगने वाला है, लीफ नहीं लगेगी, तो इस कंडीशन पे ये ब्रैक्ट, ये जो यहां पर स्टेपुल है वो ब्रॉड हो जाएगी, और ब्रॉड होकर के यहां मौजूद जो बड है उसका प्रोटेक्ट करती है. At the node site, bud protecting leaf-like structures founded. That leaf-like structures, broadly leaf structures called bract, where from flower originated, जहां से flower का origination होता है. Is that clear? Is that clear? यदि किसी भी फ्लावर में, हाँ किसको? देखिए एक मिनट मैं बताता हूं आपको. नोड पर बड है, बड की ग्रोथ चाहिए, बड को फूड भी चाहिए. फूड कौन बनाएगा? लीव्स. तो वो प्रोटेक्शन के साथ में वहां पर क्या दे रही है? उसको लीव्स भी प्रोवाइड कर रही है. इज दैट थिंग? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिफोर गोइंग टू एक्टिवेशन ऑफ दिस नोड बड, नोड पर जो बड है वो एक्टिव होगी तो आगे लीफ भी बना सकती है, फ्लावर्स भी बना रही है. यदि लीव्स बना रही है तो वो स्टैपुला होगा, उसका ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा. बट यदि वो फ्लावर बना रही है तो उस तरह की जो वहां पर नोड पर जो बड है उसके प्रोटेक्शन के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो उस जगह पर फोटोसिंथेसिस भी कर रही है और प्रोटेक्शन भी दे रही है. इस तरह से जो फॉर्म बन रही है, दैट फ्लावर एक्सिस कॉल, यदि फ्लावर के एक्सिस पर है, फ्लावर के एक्सिस के जॉइंट पर है, दैट काइंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल ब्रैक्ट. फ्लावर में है तो उसे ब्रैक्टेड फ्लावर कहते हैं, नहीं तो उसे ई ब्रैक्टेड फ्लावर कहते हैं. शो करने के तरीके दोनों हो गए. 5th नंबर, ट्राइमीरस, टेट्रामीरस,
और पेंटामेरस, राइट। हम बात करें लीव्स की, फ्लावर लीव्स, और फ्लावर लीव्स का नाम आते ही हम नाम बोलेंगे यहां पर सेपल्स एंड पेटल्स। इफ फ्लावर लीव्स, जहां फ्लावर लीव्स का नाम आ गया ना, तो हम बात कर रहे हैं फ्लावर रोल्स की। याद रखना रोल्स कौन कौन से हैं, कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ए फ्लावर लीव्स आर in multiplication of 3 or 4 or 5, 3 है या फिर 3 दूनी 6 है, 3 के मल्टीप्लीकेशन में या 4 के मल्टीप्लीकेशन में या 5 के मल्टीप्लीकेशन में। यदि 3 के मल्टीप्लीकेशन में सारे के सारे लीव्स हैं तो उसे ट्राइमेरस फ्लावर्स कहते हैं, 4 के मल्टीप्लीकेशन में तो टेट्रामेरस फ्लावर कहेंगे, और 5 के मल्टीप्लीकेशन में तो उसे पेंटामेरस कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? A flower may be trimerous, tetramerous and pentamerous when the flower appendages means rules, appendages calyx, corolla, androecium and gynoecium. If flower appendages are in a multiple of 3 or 4 or 5, इस तरह की condition, so that kind condition called flower multiplication of the roles, trimerous 3 के multiplication में और roles, टेट्रामेरस 4 के मल्टीप्लीकेशन में, या फिर पेंटामेरस 5 के मल्टीप्लीकेशन। या तो 3 होंगे या 3 2 जा 6 होंगे, 4 होंगे या 4 2 जा 8 होंगे, 5 होंगे या 5 2 जा 10 होगा। इस तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस। अब हम लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ फ्लावर। Types of flower on the basis of insertion of different flower rolls in a flower। हाँ, बोलिए। वापस रिपीट करना, क्लास में तो झापट खाता मेरे सभी को, और वापस रिपीट कर एक बार, क्या बोला तूने? तो एसेक्सुअल कैसे हुआ फिर? यहाँ गैमेट्स बन रहे कि नहीं बन रहे? बस तो होगा ही नहीं ना, जो चीज बिलोंगिंग नहीं है इसलिए तो डाल रहा हूं। सेक्सुअल पार्ट है, गैमेट बन रहा है, गैमेट बन रहा है तो उसे एसेक्सुअल कैसे बोल सकते हैं? मैं समझिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट आया ही नहीं और उसके बावजूद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाए, तो वो एसेक्सुअल तो कैसे हो सकता है? एसेक्सुअल का मतलब मियोसिस नहीं, जबकि यहां मियोसिस हुआ या नहीं हुआ? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, एसेक्सुअल कैसे होगा? है ना। उसके लिए स्पेसिफिक टर्म्स बोलते हैं, जिसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको? पार्थेनोजेनेसिस। हाँ, जब हम डाउट सेशन करेंगे ना तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी वो प्रॉपर पोर्शन नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फ्लावर on the basis of insertion of calyx, corolla and androecium, calyx, corolla and androecium in respect to ओवेरी। ओवेरी के कंपेयर में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम का इंसर्टेशन कैसे है, उस इंसर्टेशन के बिहार पर आप 3 टाइप्स के फ्लावर्स बता सकते हैं। फर्स्ट नंबर कैसे? 3 टाइप्स हो गए। नंबर 1, ओवेरी नीचे की तरफ, कैलिक्स ऊपर की तरफ, कोरोला भी ऊपर की तरफ, और ये पोर्शन जो है वो इस तरह से हो, और आपका जो
एंड्रोशियम है जिसको हम स्टैमेन बोल रहे हैं, वो वाला पोर्शन भी हो, तो ओवरी तो नीचे रह गई, बाकी कैलिक्स इससे अपर साइड में, कोरोला भी अपर साइड में है, और ये आपका हो गया एंड्रोशियम मींस स्टैमेन वाला पोर्शन ऊपर की साइड में। तो इस तरह के इंसर्टेशन को, क्योंकि ये हम इंसर्टेशन की बात करें, दैट कॉल, इसको कहेंगे हम इपीगाइनस, दैट सच काइंड ऑफ द इंसर्टेशन कॉल्ड इपीगाइनस, इपीगाइनस। एग्जाम्पल इज, इपीगाइनस का एग्जाम्पल क्या हो गया? इपीगाइनस का एग्जाम्पल यहां पर है सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर हो गया। इसका डायग्राम प्रॉपर्ली देखें तो इस तरह से देखें, जैसे ये कार्पल है और इस कार्पल के लेवल पर ये होगी ओवेरी, राइट। अब ये सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं उनके जो इंसर्टेशन है वो कहां है? ऊपर की तरफ से है। जैसे ये हो गया आपका कैलिक्स, ये हो गया कोरोला, ठीक है, और ये लास्ट वाला आपका हो गया एंड्रोशियम। तो कैलिक्स के लिए हम कैलिक्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे के, टेक्निकल टर्म है। कोरोला के लिए सी, और एंड्रोशियम के लिए ए वर्ड यूज करेंगे। ओवरी रह गई नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है। सच ओवरी कॉल इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी को शो कैसे करते हैं? शॉर्ट में ऐसे, एक स्लैश के जस्ट नीचे की तरफ जी लिख देंगे तो ये इंफीरियर ओवरी होगी। फ्लावर का टाइप हो गया यहां पर इपीगाइनस, दैट्स कॉल्ड इपीगाइनस। जस्ट अपोजिट, अपोजिट कैसे हो? ओवरी ऊपर की तरफ हो, ओवरी ऊपर की तरफ हो, सुपीरियर देन द इंसर्टेशन ऑफ डिफरेंट रूल्स। ओवरी ऊपर की तरफ हो और बाकी के सारे स्ट्रक्चर नीचे की तरफ, लाइक दिस इज कैलिक्स, दिस इज कोरोला एंड दिस इज एंड्रोशियम। तो ओवरी ऊपर की तरफ हो गई, सुपीरियर। तो इंसर्टेशन ऑफ दिस फ्लावर, इंसर्टेशन ऑफ दिस फ्लावर कॉल हाइपोगाइनस, दैट्स कॉल्ड हाइपोगाइनस। Such kind of flower called hypogynous and such kind of ovary called superior ovary, superior ovary, that called superior ovary, right? इसको superior ovary के नाम से जाना जाएगा and hypogynous. So this is the form. An example is brinjal and China rose. Example China rose. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चाइना। बीच वाली स्थिति हो, ना इपीगाइनस हो ना हाइपोगाइनस हो, बीच वाली पोजीशन हो। कैसे हो? तो यहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर ओवरी इस तरह से सेक्शनाइज, एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर क्या बन रहा है? दिस इज द रिसेप्टाकल, दिस इज द रिसेप्टाकल वेयर ऑल, मतलब एक ऐसा पोर्शन जो फ्लावर के चारों रोल्स को टिका के रखता है, दैट्स कॉल्ड थैलेमस। कप शेप, ये कप शेप्ड थैलेमस है और इस कप शेप्ड थैलेमस के ओवरी यहां पर है, दैट इज द ओवरी। और ओवरी के ऊपर की तरफ कार्पल, और वो आपका पोर्शन हो गया जो स्टिग्मा और स्टाइल है। और इस ओवरी के जस्ट पैरेलल में यहां पर न सुपीरियर न इंफीरियर क्या हो, यहां पर टिका हो कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। तो पैरेलल पोजीशन होगी, नॉट सुपीरियर नॉट इंफीरियर। इसको कहेंगे हम, ऐसी ओवरी को कहेंगे सेमी सुपीरियर ओवरी, सेमी सुपीरियर ओवरी। एंड इस टाइप के जो फ्लावर के टाइप हो उसको कहेंगे पेरीगाइनस, पेरीगाइनस।